हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट फर्स्ट इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. Okay, suppose this is our y axis, this is our x axis, and this is our origin, and our line is this. Okay, these line intersect x axis at this point and y axis at this point. Suppose this point is a comma 0, and this point is b, 0 comma b. So this a is called x intercept of a line, and this b is called y intercept of a given line. Then second point is the inclination of a line. The smallest non-negative angle made by the line with the positive direction of the x-axis in anti-clockwise sense. तो इसे हम कहते हैं inclination of a line, and it is denoted by theta. After that, slope of a line. Slope of a line. First, slope is denoted by the letter m, and if theta is the inclination of the line, then formula for slope is m is equal to tan theta. And if our line passes through two points, first point suppose a of x1 y1 and second b x2 y2, then the slope of the line is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, then relation between two parallel and perpendicular lines. If two lines are parallel, then their slopes are equal. And if two lines are perpendicular but lines are non-vertical, if two non-vertical lines are perpendicular to each other, then product of slope is equal to -1. Very important condition, these two. If lines are parallel, then their slopes are equal, and second, two non-vertical lines are perpendicular to each other if and only if product of slopes is equal to -1. After that, acute angle between two non-vertical lines. अगर acute angle हमें फाइंड आउट करना है टू इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने देखा है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 plus m1 into m2, where this m1 into m2 is not equal to -1. Okay, now today we are going to start exercise 5.2. Now exercise 5.2, question number first. Find the slopes of each of the following lines which passes through the points. हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, एंड लाइन जिस पॉइंट से पास होती है वो भी हमें दिए गए हैं. ठीक है, सो हम थर्ड नंबर लेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड आपको होमवर्क के दिए हैं. थर्ड है, पॉइंट दिया है E 2 3. ओके, F 2, -1, एंड फोर्थ नंबर ये लिख देते हैं G 7 1 and H -3, ठीक है. Okay, we know that the slope of a line passing through A of x1 y1 and B of x2 y2 is m is equal to, क्या फार्मूला है? यस, y2 minus y1 upon x2 minus x. बस ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. तो थर्ड नंबर देख लेते हैं. ओके, m is equal to डायरेक्टली लिख देते हैं. देखो, ये रहा हमारा x1 y1 और ये रहा x2 y2. ठीक है, पहले पुट कर देते हैं. y2 मींस -1, मिडिल साइन क्या है? माइनस. y1 मींस 3 अपॉन x2 मींस 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 2. सो विच इज इक्वल टू -4 अपॉन 0, एंड समथिंग अपॉन 0 मींस हम बोल सकते हैं यहाँ है इंफिनिटी. तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर स्लोप ऑफ हमारी लाइन EF है. ओके, हमारी जो लाइन है वो EF से पास हो रही है. E एंड F दो पॉइंट से पास हो रही है, तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ EF is not exist or does not exist, ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है, देन फोर्थ वन m2 which is equal to slope of line GH, slope of line GH which is equal to, देखो y2 क्या है? 1,
माइनस y1 क्या है 1 अपॉन x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 की वैल्यू 7, सो विच इज इक्वल टू 0 अपॉन -1 एंड 0 अपॉन समथिंग क्या मिलेगा हमें 0, सो स्लोप ऑफ लाइन GH हमें क्या मिला है 0। सो थर्ड एंड फोर्थ हमने यहाँ लिया है, फर्स्ट एंड सेकंड आपको होमवर्क के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ the x and y intercept of the line L are 2 and 3, x intercept 2 दिया है and y intercept हमें 3 दिया है, ठीक है। then find the slope of the line L, तो लाइन L का हमें फाइंड आउट करना है स्लोप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है x intercept which is equal to 2 and y इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू 3। एक्स इंटरसेप्ट हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं एंड y इंटरसेप्ट स्मॉल b से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखो सपोज ये रहा हमारा x एंड y प्लेन एंड दिस इज आवर लाइन L। तो x इंटरसेप्ट 2 बताया है, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा 2 0। y इंटरसेप्ट 3 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा 0 3। दिस इज आवर a। ओके, तो हमारा लाइन कहां से पास हो रहा है 2 0 एंड 0 3 से, therefore the line L passes through A and B। ओके, अब आप देख सकते हो हमारे पास दो पॉइंट्स है जहां से हमारी लाइन पास होती है। सो स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होगा, therefore m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 2, सो विच इज इक्वल टू 3 minus 0 means 3 and 0 minus 2 means minus 2, ठीक है। सो m is equal to -3/2। क्वेश्चन नंबर 3 and question number 4 are for homework। क्यों, देखो क्वेश्चन है find the slope of the line whose inclination is 30 degree, थीटा दिया है 30 डिग्री एंड हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। मींस फार्मूला क्या होगा m इज इक्वल टू tan थीटा, बस यहाँ 30 पुट करना है एंड tan 30 क्या होगा वो आपको लिखना है। एंड फोर्थ में क्वेश्चन वही है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन whose inclination is π/4 मींस 45 एंड हमें m निकालना है, m इज इक्वल टू tan थीटा। सो क्वेश्चन नंबर 3 and 4 are for homework। नाउ फिफ्थ वन, क्वेश्चन नंबर 5, a line makes intercepts 3 3 on the coordinate axis। इसका मतलब क्या हुआ, x इंटरसेप्ट दिया है लाइन का, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 एंड y इंटरसेप्ट इज आल्सो 3, ठीक। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, हमें लाइन का इंक्लिनेशन निकालना है, मींस हमें थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, सपोज जब हम डायग्राम निकालते हैं ना तो वो अच्छे से क्लियर होता है कंसेप्ट, सो इसलिए मैंने यहाँ डायग्राम निकाला। ये पॉइंट क्या है 3 0 सपोज A एंड ये 0 3, क्योंकि 3 इज y इंटरसेप्ट एंड 3 इज x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये जो यहाँ इंक्लिनेशन है ये हमें निकालना है, ये रैंडम डायग्राम हमने निकाला है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, हमारा लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है, दी लाइन L मान लेते हैं, दी लाइन L passes through A 3 0 and B means 0 3। ओके, दो पॉइंट से लाइन पास हो रहा है, तो स्लोप के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, therefore m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है। so which is equal to y2 minus y1 3 minus 0 means 3 upon x2 minus x1 means minus 3। देखो 0 minus means minus 3 3 3 कैंसिल, so which is equal to -1। so हमें लाइन का स्लोप मिला है -1। ओके, हम इंक्लिनेशन मान लेते हैं थीटा, लेट थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, जो हमें फाइंड आउट करना है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन L। ओके, एंड अगर थीटा इंक्लिनेशन होता है तो स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। लेकिन m की वैल्यू तो है हमारे पास, तो ठीक है ना, पुट कर देते हैं -1 इज इक्वल टू tan थीटा, therefore tan
थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज एंड 1 इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है tan पाई बाय 4 ओके देयरफॉर tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू tan को माइनस साइन है तो tan नेगेटिव कहाँ है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकिन दोनों में छोटा कौन है सेकंड क्वाड्रेंट सो दिस टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस tan ऑफ पाई माइनस पाई ऑफ कैसे लिखा आपने ना अलाइड एंगल फॉर्मूला बाय यूजिंग अलाइड एंगल फॉर्मूला tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा देखो पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा tan as it is okay and minus sign कहाँ से आया है pi minus theta means second quadrant and in second quadrant tan is a negative that's why here we are taking negative sign so ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है therefore tan theta pi means 180 degree and pi by 4 means 45 degree therefore tan theta is equal to tan of दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं 135 डिग्री यहाँ भी tan है यहाँ भी tan है तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिला है 135 डिग्री सो थीटा इज इक्वल टू 135 इंक्लिनेशन ऑफ आवर लाइन ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है शो दैट द पॉइंट्स a b c आर द वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हमें दिए हैं लेकिन हमें शो करना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है तो क्या करेंगे ठीक है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 गिवन ए पॉइंट दिया है 4 4 ओके बी 3 5 एंड सी -1 -1 हम परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करेंगे हमें पता है टू नॉन वर्टिकल लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है ठीक है सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप कॉल दिस स्लोप एज m1 स्लोप ऑफ AB लाइन AB ओके तो AB के लिए क्या फॉर्मूला होगा 5 - 4 अपॉन 3 - 4 5 - 4 means 1 and 3 - 4 means -1 which is equal to -1 okay second m2 means slope of BC okay B and C के लिए स्लोप निकालते हैं -1 -5 upon -1 -3 so which is equal to -1 -5 means -6 upon -4 which is equal to negative becomes positive and this is 3/4 and last one m3 this is slope of line AC ठीक है AC which is equal to A and C के लिए हमें स्लोप निकालना है so -1 -4 upon -1 फिर से देखो ये पॉइंट -1 माइनस और ये 4 which is equal to -5 upon -5 गेट कैंसिल so which is equal to 1 अगर आप अच्छी तरह से देखो तो m1 हमें -1 मिला है m3 हमें 1 मिला है therefore m1 into m3 which is equal to देखो m1 का स्लोप मींस -1 and m3 का स्लोप मींस हमें मिला है 1 ओके सो which is equal to -1 m1 into m3 हमें क्या मिला है -1 m1 मींस किसका स्लोप था स्लोप ऑफ AB ओके into स्लोप ऑफ AC which is equal to -1 दो लाइंस के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो हमें -1 मिला है तो इसका मतलब वो दो लाइंस एक दूसरे को कैसे है परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ दोनों में कॉमन वर्टेक्स देख लो आप A और यहाँ भी A है तो इसका मतलब क्या हुआ एंगल BAC is equal to 90 डिग्री ओके देयरफॉर ट्रायंगल ABC is क्या है ये राइट एंगल राइट एंगल कौन सा है राइट एंगल एट ए ही क्यों क्योंकि ए यहाँ भी है और यहाँ भी इसका मतलब AB एंड AC दोनों एक दूसरे को कैसे है परपेंडिकुलर देखो BAC ओके क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना
which makes angle of 45 degree with the positive direction of the y-axis. Measure anti-clockwise. This is our y-axis. This is our x-axis. Okay. उन्होंने कहा है ऐसे लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है जो लाइन y-axis को यहाँ 45 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है with the positive direction of the y-axis in the anti-clockwise. ऐसा उन्होंने कहा है. ये एंगल कितना होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है. सो ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो इसका मतलब ये रिमेनिंग कितना होगा? 45 होगा. ओके. अब बताओ ये जो एंगल होता है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में हमने देखा है. सपोज ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर हमारा xy प्लेन में ये एंगल कितना होता है? 90 और ये 90 डिग्री. मींस ये टोटल कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है. ये क्यों बता रहे हैं? देखो अगर आप ये लाइन कंसीडर करो, ओके, अगर ये एंगल 45 है तो मुझे बताओ ये एंगल कितना है? 135 डिग्री. दोनों का एडिशन करो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा. ओके. सो देयरफॉर लाइन को L मान लेते हैं. दी लाइन L makes an angle 135 degree with the positive direction of the x-axis. With the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense. Okay. Therefore, theta is equal to 135 degree. Okay. And finally, m is equal to tan 135 degree. m is equal to tan theta formula है ना, first theta की वैल्यू पुट कीजिए. Therefore, m is equal to tan of. डायरेक्टली tan 135 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती. तो क्या करेंगे? 135 को स्प्लिट करना है. सो 90 डिग्री प्लस 45. ओके. 90 डिग्री मींस रेशियो चेंज होगा. सो इट बिकम्स cot 45. बट पॉजिटिव है नेगेटिव? 90 डिग्री प्लस समथिंग मींस हम सेकंड क्वाड्रेंट में, and in second quadrant tan is negative. That's why here we are taking minus sign, which is equal to minus cot 45 कितना होता है? 1. So slope of the given line is m is equal to -1. ठीक है. Now question number 8. Find the value of the k. K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. For which points p, q, r are collinear. ठीक है. Given p पॉइंट दिया है हमें, k -1, q 2 1, okay, and r 4 5. ठीक है. तो उन्होंने कहा है p q r आर कोलिनियर. 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मींस क्या होता है? इसका मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं. p q एंड r. ओके. गिवन क्या है? पॉइंट्स p q r आर कोलिनियर. पॉइंट्स p q r आर कोलिनियर मींस तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. ओके. तो हमें ये फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ओके. लाइन जब मैंने आपको बताया कि लाइन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोकस, वहां मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है. अगर हम P एंड Q को, ये हमारा टोटल लाइन है, अगर P एंड Q को हम जोड़ दें और ये जो सेगमेंट है इसका हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, वो स्लोप Q एंड R के बीच का जो स्लोप है वो हम फाइंड आउट करेंगे, वो स्लोप. ये सभी स्लोप्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं या फिर कांस्टेंट होते हैं. ये मैंने आपको बताया है. ओके. सो हम यहाँ बोल सकते हैं स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR. बताया था मैंने. Slope of the segment joining any two points on the given locus is constant or equal. So slope of PQ is equal to slope of QR. Okay. So P and Q का slope find out करते हैं हम. P and Q. So हमें क्या मिलेगा? 1 minus -1. Okay. And upon 2 minus क्या चेक करो. 1 minus -1 upon 2 minus 2. And which is equal to Q and R का स्लोप हमें फाइंड आउट करना है. 5 minus 1 upon 4 minus 2. Therefore, this negative becomes positive.
So here we get 2 upon 2 minus k, which is equal to 4 upon 2. Therefore 2 upon 2 minus k, which is equal to 2. Therefore 2 is equal to 4 minus 2 by taking cross multiplication. Therefore minus 2 is equal to minus 2. ये 4 मैंने यहाँ शिफ्ट किया है. So negative negative becomes positive या फिर negative negative get cancel, 2 2 get cancel. So a is equal to 1 और यही हमें फाइंड आउट करना है. ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि पॉइंट्स P Q R आर कोलिनियर. 9th नंबर. ठीक है. Find the acute angle between the x-axis and the line joining the points. हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं given A and B. A पॉइंट है 3 minus 1. Okay. And B पॉइंट 4 minus 2. ठीक है. तो हमें निकालना है एंगल बिटवीन x-axis and the line joining these two points. तो डायग्राम कैसा होगा हमारा? हम रैंडमली डायग्राम निकाल रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं. ओके. So this is our xy plane. xy 1 2 3 4 and यहाँ ले लेते हैं -1 -2 -3 -4. यहाँ जरूरत नहीं. 3 minus 1 means यहाँ होगा. This is our A point and 4 minus 2 means यहाँ होगा हमारा B point. And suppose हमारी लाइन ऐसी होगी passing through these two points. Okay. तो x एक्सिस देखो ये रहा x एक्सिस. तो x एक्सिस और ये हमारी लाइन दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे? सबसे पहले m which is equal to स्लोप ऑफ लाइन AB. ये जो हमारी लाइन AB है इसका स्लोप हम निकाल लेते हैं. which is equal to क्या होगा वो -2 minus -1. ठीक है. अपॉन 4 minus 3 which is equal to this negative negative becomes positive, so -1. -2 plus 1 means -1 upon 4 minus 3 means 1, so which is equal to -1. m is equal to -1. ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है इसे थीटा मान लेते हैं. लेट थीटा बी दी acute angle between x-axis, acute angle between the x-axis and the line AB. So m is equal to tan theta and which is positive. क्यों? therefore तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास -1. tan theta is equal to -1. अगर आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था थीटा हमें मिला था 135 डिग्री और हमारा एंगल कैसा है? एक्यूट एंगल. तो थीटा की करेक्ट वैल्यू हमें मिलेगी नहीं. तो यहाँ हम मॉड्यूलस लेंगे. therefore tan theta is equal to modulus of -1. therefore tan theta is equal to 1 and 1 means tan 45. so theta is equal to 45 degree. angle between x axis and the line A. देखो हमने यहाँ मॉड्यूलस क्यों लिया है? क्योंकि अगर आप ये सॉल्व करो, लास्ट एग्जांपल में जहाँ हमने थीटा फाइंड आउट किया था वहाँ हमने ये सॉल्व किया है. सो थीटा हमें 135 डिग्री मिला है एंड 135 मीन्स वो एक्यूट एंगल होगा नहीं. सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ मॉड्यूलस लिया है और हमें एंगल मिला है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. ठीक है. अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट्स A एंड B. दो पॉइंट्स हमें दिए हैं और हमारा लाइन वहां से पास होता है. If the slope of the line is m, then show that. हमें कुछ शो करने के लिए कहा है. ठीक है. given A पॉइंट दिया है x1 y1. ओके. x1 y1. B hk and to show k minus y1 is equal to m into h minus x1. Okay. Since line passes through A and B. Okay. And line का स्लोप क्या दिया है हमें? स्मॉल m. Therefore m is equal to क्या मिलेगा हमें? y2 minus y1 means k minus y1 upon h minus x1. ठीक है. ये टर्म यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा. सो m into
h minus x1 which is equal to k minus 5 and hence आप देख सकते हैं 1 या 2 मार्क्स के आएगा, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2. If points A, B, C lie on a line, show that. ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट्स दिए हैं, गिवन A H0, B 0K, ओके, एंड C AB, और कहा है लाई ऑन अ लाइन मींस ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब क्या, पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर एंड शो करना है हमें, टू शो A अपॉन H प्लस B अपॉन K इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सिंस A B and C lie on a line means A, B, C are what? Collinear. Yes. So हम क्या लिख सकते हैं? Therefore, slope of AB is equal to slope of BC. Slope of AB क्या है? K minus 0 upon 0 minus H which is equal to BC का slope B minus K अपॉन A माइनस 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। देयरफॉर K अपॉन माइनस H विच इज इक्वल टू B माइनस K अपॉन A, ओके। हियर बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी गेट, AK, ओके, विच इज इक्वल टू माइनस BH, माइनस H से यहाँ मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो HK, ठीक है। देयरफॉर AK प्लस BH विच इज इक्वल टू HK, ये हमें मिला है। जो दिखाना है वो अभी भी हमें नहीं मिला है, क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हो RHS में क्या है 1, तो यहाँ हमें 1 लाना है, तो यहाँ 1 लाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय HK, सो व्हाट विल गेट AK अपॉन HK प्लस BH अपॉन HK which is equal to HK upon HK. HK gets cancelled, so here we get 1, KK get cancelled, so A upon H plus B upon H get cancelled, K, and hence आप देख सकते हो A upon H plus B upon K is equal to 1, and hence solution of question number 11, and hence exercise 5.2 of straight line is complete. Thank you.